So guys, this is the second part of prelims 2024 PYQ. I hope you all have seen the first part and other parts of 2021 and 2022 also. So let's start with second part of prelims 2024. Question number 51. Statement 1. If the USA were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claim to receive their payment. This is correct क्योंकि this is based on promise. Nothing substantial. Second, the USA debt is not backed, ये जो similar statement, not backed by any hard asset, but only by the faith of the government till 1971, before Richard Nixon devalued it around 1973, 1974, 1973 or 1975. It was backed by gold. After that, it was devalued. So this is only backed by promise, but only by the faith of government. This is correct. Option 1 and 2 is correct because we can. This is correct reason. And statement 2 correctly explains statement 1. I hope समझ आ गया होगा. Because of Richard Nixon has gold standard का डॉलर से बैक था वो हटा दिया. Next 52. This has been dropped because UPSC translation सही नहीं कर पा रहा था. Question number 53. Consider the following statement in respect of digital rupee. First, it is sovereign currency issued by the Reserve Bank of India. This is correct. In alignment of monetary policy, general, correct. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. This is correct. Just like rupee printed by it, same, correct. Third, it is insured against inflation by its very design. This is like extreme words. It is like other rupee currency, not. This is issued insured against. This is not insured against. मतलब इन्फ्लेशन वगैरह का इम्पैक्ट पड़ेगा डिजिटल रुपी के बाद भी. Fourth, it is freely convertible against commercial bank money and assets because backed by RBI. RBI ने बैक किया इसलिए हो सकता है. तो आंसर इज 1, 2 and 4 डी. आई होप ये समझ आ गया होगा. लॉजिकल गैसिंग करनी है. 54. With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following name? किस नेम से गौतम बुद्ध को बुलाते थे? First, Nayaputta. Second, Shakyamuni. Third, Tathagat. Select the correct answer. Answer is ये तथागत बुलाते थे, शाक्यमुनि बुलाते थे, नाट्यमुनि उनको नहीं बुलाया जाता था, ये उनका नाम नहीं था. आंसर इज बी, 2 and 3. दिस इज नॉलेज बेस्ड game. If you don't know, skip such questions. Then question number, ये भी tricky है. Consider the following information. मतलब this is tough question. जनरल नहीं है. You can skip such question. Skippable है. Question number 56. Who of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build fort at Bhatkal? Krishnadev Rai, Narsim Saluwa, Muhammad Shah III and Yusuf Adil Shah. The most popular of them is Krishnadev Rai. 2023 में भी देव राय पे क्वेश्चन आया था. दिस इज पॉपुलर ऑफ ऑल फोर. मतलब हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो एक एटलीस्ट वन क्वेश्चन जो इस ट्रिक से चीट कोड से हो जाता है. आई होप समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया ये क्वेश्चन. दिस इज ड्रॉप्ड. देन क्वेश्चन नंबर 58. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना कौन सा सही है. फर्स्ट, करेक्ट बताना. ऑलवेज नोटिस की क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट. फर्स्ट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद. दिस इज रेड फ्लैग. देयर आर नो गलत है. सेकेंड, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास. पुराना जैसे महाभारत रामायण वगैरह, इनसे पहले उपनिषद को कंपोज कर दिया था. पहले फिलोसफी, देन स्टोरी, महाभारत रामायण वगैरह. तो दिस इज करेक्ट. ऋग्वेद जैसे फिलोसफिकल था वैसे ही उपनिषद फिलोसफिकल था. तो फिलोसफिकल स्टफ पहले आ गए 1500 1000 बीसी में. देन पुराणास वगैरह 6th century 5th century में. दिस इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, अर्लियर. आंसर 2, उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर. अर्लियर देन से कंपैरिजन से कंफ्यूज मत हो जाना. यूज योर कॉमन सेंस कि उपनिषद लॉजिक लगाना. ऋग्वेद में फिलोसफी है, उपनिषद में फिलोसफी है. पुराना जैसे भगवद गीता, महाभारत एंड ऑल
ये सब बाद में रखे गए। आंसर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसमें क्वेश्चन में करेक्ट पूछा, बी केयरफुल। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। सेकंड, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। दोनों में ग्रीन काउंसिल है, तो इसमें हम मैंने बताया था अगर एक में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो डिलीट कर सकते हैं, बट दोनों में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो वी हैव टू सॉल्व इट बाय नॉलेज, क्योंकि इनमें से दोनों सही हो सकते हैं या कोई भी गलत हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर एक में दिया होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो वो इजीली हम रेड फ्लैग की तरह डिलीट कर पाते हैं। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस और व्हीट। दिस इज वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन स्किप इट। आंसर इसका दो, वन ओनली है। देन क्वेश्चन नंबर 60, which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? ये बहुत पॉपुलर है, गरबा। दिस वाज इन न्यूज 2024 में ये हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, who was the provisional president of the constituent assembly before Rajendra Prasad took over? This is very easy, NCERT based question है ये। सचिदानंद सिन्हा। दिस इज इजी क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना। Then next question number 62, with reference to Government of India Act 1935, consider the following statements. First, it provided for establishment of an all India federation based on union of British India provinces and princely state. Federation की बात हुई थी, दिस इज करेक्ट, पर ये एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। रिमेंबर, एग्जिस्टेंस में आने के लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रिंसली स्टेट का यस बोलना जरूरी था, बट उन्होंने यस नहीं बोला, तो इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। सेकंड, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। दिस इज रॉन्ग, दीज वर अंडर रिजर्व लिस्ट विद एग्जीक्यूटिव। इसका हेड गवर्नर था, एंड दिस इज नॉट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर नहीं, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर के पास कौन से सब्जेक्ट थे? ट्रांसफर्ड। और एग्जीक्यूटिव के पास कौन से थे? रिजर्व। तो दीज आर डिफेंस फॉरेन अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दीज आर विद रिजर्व एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। क्वेश्चन नंबर 63, which one of the following is a work attributed to playwright भाषा? This is directly from NCERT। हमें पता है नाट्य शास्त्र भरत मुनि है, भरत मुनि, महाभाष्य पतंजलि। इसका आंसर इज मध्यम मध्यम व्यायोग। आई होप ये आप अटेम्प्ट कर पाए होंगे, ये अगेन नॉलेज बेस्ड है, अटेम्प्ट और स्किप। क्वेश्चन नंबर 64, संघभूति, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on, answer is Sarvastivad Raya। This is again knowledge based, if you know it attempt it, otherwise skip such questions। Then question number 65, इसमें बताना है consider the following properties included in the World Heritage Site released by the UNESCO 2023। This is recent करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इसलिए बोलते हैं यूपीएससी में अगर आप पेपर दे रहे हो तो ऑलमोस्ट एक साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। इसमें बताना कौन कौन से 2023 में हुए थे। ये चारों ही यूनेस्को की साइट है, ऑल द फोर आर फ्रॉम यूनेस्को, बट शांति निकेतन एंड सेक्रेड, ओनली दीज टू आर 2018 में। आंसर इज ओनली टू। दिस इज करंट अफेयर, यू शुड अटेम्प्ट इट। देन क्वेश्चन नंबर 63, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मे अमेंड any provision of the constitution by way of, ये clearly 368 में तीनों मेंशन है। This is mentioned in article 368 और इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है, there are no red flags, तो ये this can be easily attempted। Answer is 1, 2 and 3। Next question number 67, consider the following countries। इसमें बताना है कौन सी कंट्री में एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी आज के टाइम में अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और एजिंग पॉपुलेशन का इशू है। जैसे इटली डेवलप्ड, जापान डेवलप्ड, एजिंग, नाइजीरिया, अफ्रीका, इसमें काफी सारी पॉपुलेशन मतलब यंग है अभी। इसमें साउथ कोरिया डेवलप्ड, साउथ अफ्रीका ये अफ्रीका में है, तो इसमें कंसर्न नहीं है। आंसर इज 1, 2 and 4। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में है। कंसर्न डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का है। जैसे जैसे एजुकेटेड होते जाते हैं लोग,
वैसे ही वो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कम होती जाती है. पीपल ऑल्सो डोंट प्रेफर टू मैरी, तो इसलिए एजिंग पॉपुलेशन होती है और डिक्लाइन ऑफ यंग पॉपुलेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में भी आया है. क्वेश्चन नंबर 1. आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. मतलब मनी बिल के टाइम पे बताया कि देयर इज जॉइंट सिटिंग इज नॉट अलाउड. दिस इज एन आर्टिकल 104. दिस इज करेक्ट. A money bill shall not be introduced in the Council of State. Council of State यानी राज्यसभा. This is correct. लोकसभा में इंट्रोडक्शन होता है. ओनली लोकसभा. काउंसिल ऑफ पीपल, ये पीपल होना चाहिए था. Then next, the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. This is correct. Fourth, amendments to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. Not necessarily. It is not necessary. This is wrong. Answer is C, 1, 2 and 3. This is basic, directly उसका question है लक्ष्मीकांत का. Then question number 69. इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी दिया है. इसमें करेक्ट मैच करना है. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. आंसर इज डी. इफ यू नो अटेम्प्ट इट. ये नॉलेज बेस्ड है. अदरवाइज स्किप सच क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने, कौन से अटेम्प्ट. नेक्स्ट, द नेशनल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में अमेंडमेंट हुआ था 2002 में. उसमें मेंबर्स किसको बोलते हैं? गवर्नर इज द मेंबर, चीफ मिनिस्टर इज द मेंबर, 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इज द मेंबर, होम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो chairperson. It is not a member. Answer is A, 1, 2 and 3. होम मिनिस्टर को मेंबर नहीं माना गया है. सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट में these 3 are members, not the home minister. He is the ex officio chairman. Question number 71. How many delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? ये न्यूज में था delimitation in news. आंसर इज डी, 4 times. राइट इन द कमेंट सेक्शन ईयर के नाम की कब का डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुआ है. देन नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग. 71 शेड्यूल से किसको एक्सेप्ट किया था? आंसर इज 1, 2, 3 कोंकणी, मणिपुर, नेपाली. राइट इन द कमेंट सेक्शन मैथिली को विच अमेंडमेंट से डाला था, और इज इट इन द 8th शेड्यूल? Write in the comment section. Then question number 73. फॉलोइंग पे भारतीय जनसंघ, एवरीवन नोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी का इतना बड़ा रोल रहा है. वो फर्स्ट कैबिनेट थी जवाहरलाल नेहरू की, उसमें मिनिस्टर भी थे. देन सेकंड, सोशलिस्ट पार्टी. दिस इज रॉन्ग. सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे आचार्य नारायण देव. ये सोशलिस्ट पार्टी. कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, करेक्ट. स्वतंत्र पार्टी, ये थोड़ी राइट पार्टी थी. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह, प्राइवेटाइजेशन एंड इस पर फोकस करती थी. दिस वाज बाय सी राजगोपालाचारी. तो ये ऑप्शन फ्लिप कर दिए, सेकंड और फोर्थ. ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट. ओनली 2. ये बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है. यू शुड नो गाइस. क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? म्यूनिसिपैलिटी के बाद पार्ट 9A में है. 9 मतलब ये पता होना चाहिए आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में, कौन से पार्ट में. यूपीएससी अधिकतर पूछ लेता है शेड्यूल का और मैच द फॉलोइंग, और कौन से पार्ट्स हैं उसका मैच द फॉलोइंग. Emergency is in 18th, provision related to amendment is in 20th. तो there are, मतलब दोनों तीनों में ही ये आ रहे हैं, तो there are no red flags. मतलब similar types हैं, because of similar types. Answer is D, 1, 2 and 3. अगर किसी भी एक में आ जाता तो we could have said it is a red flag. पर अगर तीनों में है तो this is not a red flag, this is similar type of statement. अगर एक में आ जाता, पार्टी स्पेसिफिक फैक्ट हो जाता, पॉसिबिलिटीज में गलत होने की होती. देन क्वेश्चन नंबर 75. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट बताना है. इंटरस्टेट ट्रेड इज इन स्टेट लिस्ट, रॉन्ग. दिस इज इन यूनियन. इंटरस्टेट माइग्रेशन स्टेट लिस्ट, रॉन्ग. फिर देन कॉर्पोरेशन टैक्स इज इन स्टेट लिस्ट, रॉन्ग. इंटरस्टेट क्वारंटीन इज इन यूनियन लिस्ट, करेक्ट. अच्छा, दिस इज आंसर ऑड वन आउट. इसमें स्टेट लिख रहा है, स्टेट लिख रहा है, स्टेट लिख रहा है, बट इसमें ओनली यूनियन. दिस इज ऑड. तो वी कैन इजीली मार्क. हमने जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स पढ़ी हैं, थोड़ा लॉजिकल वो कॉमन सेंस लगाकर, नॉलेज लगाकर, मेनी क्वेश्चंस कैन बी इजीली आंसर्ड. क्वेश्चन नंबर 76. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
Has the Supreme Court of India placed right to privacy in last 6 years? ये 3 times पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन. Right to privacy is in Article 21. Right to sleep, right against arrest, right to fair treatment, ये सारे के सारे राइट आर्टिकल 21 में. और यू शुड नो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है. ड्यू प्रोसेस मेनका गांधी केस में आया था, तो यू शुड नो. यूपीएससी ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है. देन क्वेश्चन नंबर 77. What are the duties of the Chief of Defence Staff (CDS) as the head of military Department of Military Affairs? This was in news. Easy question है. He is the permanent chairman of Chief of Staff Committee. Correct. Exercise military command over the 3 chiefs. Military command. This is wrong. Independent domain होता है, मतलब सीडीएस को इसलिए बनाया कि होलिस्टिक आर्मी इंडियन फोर्सेस में रिफॉर्म किया जा सके. दिस इज नॉट टू कमांड अदर सर्विस चीफ. दिस इज रॉन्ग. मतलब एक्सट्रीम उसका ये रोल नहीं है. सीडीएस का रोल क्या है कि इंडिया की मिलिट्री में रिफॉर्म्स कैसे कैरी आउट हो, कैसे सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 3 फोर्सेस इंक्रीज हो. और 3 चीफ्स अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर ये कमांड नहीं है. थर्ड, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राइब सर्विस मैटर. दिस इज करेक्ट कोऑर्डिनेशन. आंसर इज 1 and 3 डी. ऑप्शन स्टेटमेंट से भी पता चल जाता है, रेड फ्लैग हो सकता है. Question number 78. Operation undertaken by the army towards upliftment of local population in remote areas to include addressing of their basic need is called Operation Sadbhavna. न्यूज में था. दिस इज बोलते हैं विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटेजी. ये मेंस में पूछा जा चुका है. ऑपरेशन सद्भावना में एजुकेशन वगैरह स्केलिंग, आर्मी वगैरह सिविल पॉपुलेशन को हेल्प करती है. आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मतलब दिस इज अ बिट कॉमन. क्वेश्चन नंबर 79. द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन 2 countries in the world is चिली, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रशिया फेडरेशन. आंसर इज ए. ये जनरल जीके का क्वेश्चन है. कनाडा एंड यूएसए. दिस इज द करेक्ट आंसर. मतलब उसकी बाउंड्रीज मतलब ह्यूज. कनाडा इज अ वेरी ह्यूज कंट्री. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following statement about ethics committee in the Lok Sabha are correct? ये वाला ऑप्शन पैटर्न करके रेड फ्लैग ढूंढना है, कौन सा एक हो सकता है. सेकंड पार्ट, इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमिटी. करेक्ट. दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर व्हिच इज सब जुडिस. दिस इज करेक्ट, पॉजिटिव. सेकंड, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोक सभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द लोक सभा. नहीं, कंप्लेंट्स बाहर से भी मिल सकते हैं. दिस इज रॉन्ग. आंसर इज 1 and 3. ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? दिस इट वाज इन न्यूज कि महुआ मोइत्रा पे एथिक्स कमेटी में इशू चला गया था, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था. दिस वाज इन न्यूज. दिस इज रॉन्ग. ओनली अ मेंबर, ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम. इसमें रेड फ्लैग कैच करना है, कोई पॉसिबिलिटी है रेड फ्लैग की. Provision will come into effect from the 18th Lok Sabha. This will come into force 15 year. अब दोनों में नंबर है, बट कोई भी एक स्टेटमेंट ही गलत हो सकता है. Provision will come into effect from ये 18 लोक सभा. दिस इज रॉन्ग. आफ्टर डिलिमिटेशन के बाद ही आ सकता है. जब डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, उसके बाद ही जो सीट्स एलोकेट कौन सी वुमेन को करनी है, तभी ओनली इट कैन बी डिसाइडेड. दिस इज कॉमन सेंस. नॉट 18 लोक सभा, आफ्टर सेंसस एंड डिलिमिटेशन. Second, this will come into in force for 15 years after becoming an act. अधिकतर जितने भी रिजर्वेशन वगैरह दी गए हैं वो सबको SC/ST वगैरह हमेशा 15 years का ऐसे स्टार्ट होती है, फिर वो रोल ऑन होते जाता है. दिस इज करेक्ट. देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट. दिस इज करेक्ट. पंचायती राज सिस्टम में भी यही सेम सीन है. आंसर इज सी, 2 and 3. देन क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about Mitra Shakti 2023 are correct? This is not between India and Bangladesh. Mitra Shakti is between India and Sri Lanka. Write in the comment section कि हम बांग्लादेश के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, और ऑल्सो राइट नेपाल के साथ, चाइना के साथ, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश के साथ विच एक्सरसाइजेस वी डू. तो ये पता होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. तो ऑप्शन 2, 3, 4 आर करेक्ट. डी कि ये पुणे में हुई थी जॉइंट रेस्पॉन्स जनरल, इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ इट. ये जनरल स्टेटमेंट है. यूपीएससी ऐसे फैक्ट बहुत ज्यादा अल्ट्रा फैक्ट कभी कभी गलत कर देता है. क्वेश्चन नंबर 83. अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू. अधिकतर इशू यूपीएससी रिट्स पे काफी क्वेश्चन पूछता है. क्यों ओवररन पे पूछ चुका है, मैंडेमस पे पूछ चुका है,
जो कि यूपीएससी ने गलत आंसर दिया था अपनी आंसर की में। तो प्रोहिबिशन नेक्स्ट सर्चवारी पे आ सकता है, क्योंकि सर्चवारी रह गया है। इसका आंसर डायरेक्टली आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत। मतलब दिस इज इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। ठीक है, डायरेक्टली ये लाइन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, it is governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. Is it correct? No, this is not. कौन डिक्लेयर करता है उसको? राइट इन द कमेंट सेक्शन हु डिक्लेयर ट्राइब, जो लिस्ट में कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, एक और चीज, ओबीसीज को गवर्नर डिक्लेयर करता है या प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है? प्लीज ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि ये दिस वाज न्यूज, उससे रिलेटेड नेशनल बैकवर्ड कमीशन भी लास्ट ईयर 2023 में पूछा चुका है। सेकंड, अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। दिस इज करेक्ट, लॉजिकल। सारी स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी होती है ना, तो किसी में शेड्यूल ट्राइब हो सकती है, उसमें नहीं होगी अगर मेजोरिटी है। तो दिस इज सेकंड इज करेक्ट, कॉमन सेंस। देन 85, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यूपीएससी ने इसको करेक्ट माना है, हाउएवर आर्टिकल 112 में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। Second, at the union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of president. सही है, demand for grant ये भी directly लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, दिस करेक्ट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, ये करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू अस सेकंड करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following is the author of the book The India Way and Why Bharat Matters? Answer is सुब्रमण्यम जयशंकर। बहुत पॉपुलर बुक है, easy question, this you guys should know it. Then question number 87, अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, करेक्ट। उधर इकोनॉमिक क्राइसिस काफी अराउंड 20 ईयर से गड़बड़ चल रही है। मतलब शुरू में 2010 तक सॉरी अच्छा था, 2010 के बाद इकोनॉमी स्लंप होती गई, स्पेशली लास्ट 10 इयर्स में द इकोनॉमी हैज बीन वेरी वेरी बैड इन अर्जेंटीना, वेनेजुएला, दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑयल कर्स। दिस इज रॉन्ग, मतलब दिस इज करेक्ट, वर्स्ट क्राइसिस। Second, Sudan, war between the country's regular army and paramilitary force. This is correct. Third, Turkey rescinded its membership of NATO. Turkey is a very important player. प्रीलिम्स हो जाने के बाद मैं टर्की पे पूरी वीडियो लाऊंगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी क्लेवर है। टर्की के पास उससे S-400 की मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से भी है, साइमल्टेनियसली यूएसए के F-35 जो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी टर्की के पास है। तो टर्की ऐसे बैलेंस करके चलता है। तो दिस इज रॉन्ग, रिसेंडेड नहीं हुआ है, अभी भी नेटो का मेंबर है टर्की। अच्छा, राइट इन द कमेंट सेक्शन हु आर द न्यू मेंबर्स ऑफ नेटो, प्लीज, ये क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में सूडान से रिलेटेड एक M23 ग्रुप है, वो कहाँ एक्टिव है, और मैप में प्लीज आप उसकी जो जोग्राफिकल कंट्रीज हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, अफ्रीका में वो किस कंट्री में किस कंट्री का ग्रुप एक्टिव ग्रुप है और कौन सी कंट्री आपस में बाउंड्री शेयर करती हैं। प्लीज M23 रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और न्यू नेटो मेंबर्स कौन है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आंसर इज ओनली 2 पेयर। देन क्वेश्चन 88, स्टेटमेंट 1, सुमेर पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, जनरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, सुमेर पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरियन सी। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट इस वजह से, बिकॉज ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। Then question 89, consider the following statement. Red Sea receives very little precipitation. No water enters Red Sea from rivers. इसलिए try हो रही है। This is both 1 and 2 are correct. ये knowledge based question है। You can skip such question. मतलब I would have skipped such question. tricky है। Then, according to Environmental Protection Agency, which of the following is the largest source of sulfur dioxide? Locomotive, ship, extraction of metal, power plant. This is logically common sense. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है, कोल, क्योंकि हम इसमें कोल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज में होता है, तो पॉल्यूटिंग डी। 91, स्टेटमेंट 1,
There is instability and worsening security situation in the Sahel region. This is correct. Instability, Sahel. Africa is marked by instability, famine, coup. Statement 2. There have been military takeovers in several countries of Sahel region in the recent past. This is correct. Instability का reason यही है. Because अगर reason correct है तो ये answer A would be correct. Both 1 and 2 are correct. 2 correctly explains 1. Then 92. Consider the following statement. India does not import apples from the United States. अगर एक एप्पल भी कोई भी स्टार्टअप इंपोर्ट कर रहा होगा तो उसको इंपोर्ट ही माना जाएगा, डू नॉट नहीं. दिस इज एक्सट्रीम रेड फ्लैग. This is wrong. Then in India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. Write the name of authority. ये यूपीएससी में पीवाईक्यू में पूछा चुका है. This is correct. Option 1 is incorrect and option 2 is correct. Next, question number 93. With reference to the speaker of the Lok Sabha, consider the following statement. इनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है. अटेम्प्ट करने से पहले प्लीज सी कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट. तो पूछ रहे हैं which of the following are correct. First, Lok Sabha speaker shall not preside. This is correct. Deputy speaker या कोई और डिसाइड करता है. Second, he shall not have the right to speak. This is incorrect. इसको राइट होता है स्पीक करने का. This is wrong. अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? To defend. Lok Sabha speaker has right to speak. Third, he shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. This is wrong. First instance में allowed है, but in case of equality of vote, not allowed. आई होप ये समझ आ गया होगा. अगर वोट इक्वल है तो अलाउड नहीं है. फर्स्ट इंस्टेंस में जब अभी वोटों की काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई है तब अलाउड है. अगर वोट इक्वल आ जाता है तब सेकंड इंस्टेंस में नॉट अलाउड. आंसर इज ए, 1 ओनली. ये लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है. दिस इज इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. With reference to Indian Parliament, consider the following statement. First, a bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. This is correct. ये PYQ में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है. Second, a bill passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha and pending in Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. This is correct. कोई भी बिल अगर लोकसभा से टच हो गया तो वो लैप्स हो जाता है. Third, a bill in regard to the President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on dissolution of the Lok Sabha. This is wrong. इसमें नॉट लैप्स होता है अगर ये प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आ गया. आंसर इज बी, 1 and 2. लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर 95. विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अगेन लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग statement. First, prorogation of House by President does not require advice of Council of Ministers. Does not. President always require advice. Constitution में कौन सा amendment हुआ था जिसमें लिखा था President shall function on the advice of Council of Ministers? Shall always require advice. ठीक है, advice हमेशा चाहिएगी. Second, the prorogation of House is generally done after the House is done adjourned sine die, but there is no bar to the President of India promulgating the House which is in session. This is correct. Third, the resolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of Council of Ministers. This is correct. President हमेशा Council of Minister के एडवाइस पे डिसॉल्व करेगा, पर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं एक्सेप्शनल जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो मेजोरिटी वोट वो नहीं करता, कमांड नहीं करता, तब प्रेसिडेंट खुद से भी कर सकता है डिसॉल्व इन रेयर केसेस. तो दिस इज करेक्ट. आंसर सी, 2 and 3 are correct. This is directly from Lakshmikant. Then question number 96. Consider the following statements. The European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. अब इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कंफ्यूज मत होना. Second, the International Union intends to achieve carbon neutrality by 2040. अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर में कंपटीशन हो, चांसेस है कि नंबर गलत होगा. 2040 नहीं आएगा, 2050 आएगा. इतना ऑड नंबर वैसे भी नहीं हो सकता.
Option 1 is correct, 2 is incorrect. Then 97. Consider the following statement. First, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis. इसमें आएगा has not. It is still struggling. अधिकतर countries, Venezuela, Argentina, these are struggling. Wrong. Second, Venezuela has the world's largest oil reserve. This is correct. अगर the second आ जाता तो wrong हो जाता. Second, third ऐसे number आ जाता. Answer 1 is incorrect, second is correct. Then question number 98. इसमें बताना है with reference to digital India land record modernization. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है. Consider the following statement. To implement the scheme, central government provides 100% funding. This is correct. नंबर से कंफ्यूज मत होना. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो 100% फंडिंग गवर्नमेंट की है. Second, under the scheme, cadastral maps are digitized. Correct. An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the language recognized by the Constitution. This is correct. Any से confuse मत होना. Positive है, recognized by Constitution of India. Answer is D. 1, 2, and 3. Next, question number 99. With reference to Pradhan Mantri Surakshit Matra Abhiyan, consider the following statement. अधिकतर you must have seen कि women उससे related, maternity से related काफी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. You should be careful, this time हो सकता है. First, this scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimester number and 6 months post-delivery healthcare system in any government facility. Any नहीं आएगा, इधर आना चाहिए. Designated facility. This is wrong. Second, under the scheme, private sector healthcare provider of certain specialties can volunteer. This is general and positive statement. To provide services and nearby government health facility. This is correct. Answer 2. I hope आपको ये ट्रिक्स इंप्लीमेंट करना आ रहा होगा कॉमन सेंस के साथ. Question number 100. This is our last question. With reference to Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana, consider the following statement. First is saying the entry age for enrollment in the scheme is 21. Adult आप हो जाते हो 18, तब से enroll कर सकते हैं. First is wrong. Second is correct. Second दोनों में आ रहा है. Second is correct. अब fourth का इसमें दिया ही नहीं है, मतलब या तो बी से ही होगा या सी से ही होगा. फोर्थ में भी फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस. अनमैरिड डॉटर इज इनकरेक्ट. सेकंड इज करेक्ट. थर्ड, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60. दिस इज करंट अफेयर का पॉपुलर. दिस इज करेक्ट. आंसर इज 2 and 3. नंबर से कंफ्यूज मत हो जाना कि नंबर हमेशा गलत होता है. करंट अफेयर्स में ये बहुत प्रोमिनेंट है कि मिनिमम 3000 देने. बहुत स्कीम ये पॉपुलर हुई थी. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर 2024 का प्रीलिम्स का एक्सप्लेन कर दिया. वी हैव कवर्ड फ्रॉम 2021 to 2022, 2023, 2024 fully PYQ are solved. So I have done my part as I committed. I also delivered it. जैसा मैंने बोला था मैंने डिलीवर कर दिया. बाकी now it is your responsibility to revise it and implement it properly. See, tricks के basis पे don't mark the question simply on tricks. ये नंबर आ गया mark कर दिया. You have to apply your common sense or knowledge. हमेशा मतलब knowledge जब आप लगाते हो तो 50-50 तक ऑप्शन आप around 30-35 के बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली आप उनमें 50-50 तक पहुंच जाते हो. फिर 50-50 के बाद कैसे अश्योरिटी रहे उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वुड हेल्प. सो बी केयरफुल व्हाइल मार्किंग. बाकी लेट्स मीट 20 परसों ही मिलते हैं 25 को. आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए. ऑल द बेस्ट. प्लीज डोंट बी नर्वस. पेपर वुड बी नाइस. यू रिमेंबर एवरीथिंग. हैव फेथ इन योरसेल्फ. अच्छा होगा. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं परसों. आई विल ऑल्सो रिलीज द आंसर की आफ्टर द सीसेट एग्जाम. मैं प्रीलिम्स और सीसेट के बीच में नहीं, सीसेट के बाद रिलीज करूंगा. बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. प्लस टेलीग्राम ग्रुप आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो रिमेंबर कल 10 बजे 24 मई को 10 AM पे टेलीग्राम ग्रुप पे आई विल टेक लाइव स्ट्रीम सेशन. जो भी डाउट्स हो कुछ भी आप पूछना चाहते हो यू आर फ्री टू आस्क. सो ऑल द बेस्ट. मिलते हैं.